ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादाना सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। Yay! Srila Prabhupada's childhood. Yes, Mataji, you were audible, and we can start from Srila Prabhupada's childhood. Okay, so क्या कोई रीड करना चाहेगा? ईशानी माताजी, शांची माताजी. Yes, Jyoti Mataji. Janvi Mataji. You can start from here. Srila Prabhupada's childhood. A Nityasiddha never forgets the service of the Lord. He is always engaged, even from childhood, in worshipping the Supreme Personality of Godhead, Sri Narottama Das Thakur. Therefore, sings Gaurangira Sangi Gane Nitya Siddha Kari Mane. Every devotee should know that all the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu, his family members, friends, and other associates, we all Nitya Siddhas. A Nitya Siddha never forgets the service of the Lord. He is always engaged, even from childhood, in worshipping the Supreme Personality of Godhead. Sri Chaitanya Charanamrita Madhya Leela 3.167. The name was kept Abhay. Abhay means there is no fear of death of this child. In my material uncle's house, because I was born on the Nanda Utsav, they kept my name Nandulal. Prabhupada surrendered with Krishna consciousness. That was my great fortune. My father, mother, my relatives, my neighborhood, I had the opportunity mixing with everywhere there was Krishna consciousness, and they were all well-to-do, rich. This was the opportunity. Then gradually it developed. My father was a great Vaishnava. He was worshipping Radha Krishna. Our family deity was Damodara. So here detail, maybe.
Literary, we are Vaishnavas, followers of Nitai Gaura, Tamala Krishna. I think it was I think it sorry. I think it will be very nice if he does this book, and I find the right time. Sometimes there will be opportunities when we can sit and I can ask these questions and you can speak about them. And I had the opportunity of associating with Radha Govinda of the Muliks from childhood. We were playing there. I was singing the deity, uh, and I questioned, here is God. Like that atmosphere was all Krishna conscious. He was a retired plender. He was our neighbor, so a nice Vaishnava. Tamala Krishna was he that elderly man who would slip sometimes when he was offering obs- obeisance. Prabhupada, that was the atmosphere. I had the opportunity to get very pet child Tamala Krishna, pet child, Prabhupada, whatever I shall want, they will supply. I was not unwanted child for killing. Tamala Krishna, you told the story that one time because you were accustomed to liking puris more than chapatis and your mother did not supply you. Hmm. You ran upstairs and refused to eat. Then your father came home and became very sorry and he made your mother cook immediately puris for you. Was that one of the STO Prabhupada? Hmm. The name was kept Abhaya. Abhaya means there is no fear of death of this child. In my material's uncle's house, because I was born on the Nanda Ustava, they kept my name Nandulal. SP Room Conversations, July 19, date 1997 Vrindavana. I remember when I was only about 1 year old, there was a great Sankirtan in our house and I joined the dancing party. If we are passing through so many stages of life from birth or from the womb of the mother, then what is the reason that one does not believe that is no life after death? Can you say, any one of you, what is the reason? You remember our boyhood body, I remember my youthhood body, so that body is no longer existing, but I am existing. I remember my childhood body, my babyhood body, also, I remember particularly when I was about 6 months old, I still remember very vividly. I was laying down on the lap of my eldest sister, and she was knitting. Maybe I remember still. Yes, 6 months. I remember when I was only about 1 year old, there was a great Sankirtana in our house, and I joined the dancing party, and I was seeing up their knees very small. So I remember those days, and then after that, I was a boy.
I was very much fond of cycle. So many things. Yes, so many dangers, so many adventures. Now I am old man. So all those different stages of body I remember, but those bodies are not existing. So similarly, I remember or forget, but I was in different types of body. That's fact. So similarly, after leaving this body, I will have another body. um, मुझे एक सेकेंड रुकिए. I will have another body that is not to not sorry natural conclusions. SP conversation with Dai Nippon, April 1970 to Tokyo. आगे मैं पढ़ूँ या कोई और पढ़ेगा? यस माता जी, क्या आप इसको समराइज कर सकते हो? मीन्स हमने जो भी पढ़ा इसको अगर... सॉरी प्रभु जी. नहीं माता जी, अभी तक एक पेज से ज्यादा हो गया एक्चुअली. सो ठीक है, मैं देखिए बताता हूँ. मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ. ओके, जी. पेज नंबर 1 में. यस, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रभुपाद जी के माता पिता दोनों ही वैष्णव थे. एंड प्रभुपाद जी को बचपन से ही भक्ति की प्रोसेस के बारे में नॉलेज दी गई थी, क्योंकि उनके फैमिली वाले सभी वैष्णव थे, है ना. तो इससे हमें ये सीख मिलती है. एक क्वेश्चन आप सबके मन में आता होगा कि सिर्फ इंडिया में ही सारे भगवान लोगों का मतलब सारे भगवान अवतार क्यों लिए, है ना. जितने भी अवतार हुए हैं इंडिया में ही क्यों हुए, इंडिया के बाहर भी तो हो सकते थे, है ना. बट ये कॉमन क्वेश्चन होता है सब लोगों के साथ में, है ना, कि सिर्फ इंडिया में ही भगवान लोगों का प्रेजेंस क्यों है. ये अर्थ तो इतनी बड़ी है, अमेरिका में ले लेते, जापान में ले लेते, बट इंडिया ही क्यों. जानवी माता जी, क्या आप म्यूट कर सकते हो? सॉरी प्रभु जी. यस. सो अब एक्चुअल में ना गुरु महाराज से भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, एंड तब उन्होंने रिवील किया कि जहाँ पर माता और पिता दोनों भक्त होंगे ना, वहीं पर भगवान जी जन्म लेंगे, वहीं पर शुद्ध भक्त जन्म लेते हैं, है ना. वहीं पर शुद्ध भक्त नित्य सिद्ध साधु, नित्य मुक्त साधु प्रेफर करते आना, है ना. अब अमेरिका में या आउट ऑफ इंडिया जहाँ पर भी है ना, वहाँ पर ना तो माता भक्त है ना तो पिता भक्त है. इस वजह से वहाँ पर कोई भी प्रेफर नहीं करता है आना फ्रॉम गोलोक वृंदावन. तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी बॉर्न कहाँ पर हुए, जहाँ पे माता और पिता दोनों भक्त हैं. सो इससे हमें ये सीख मिलती है, अगर हम अपने घर पर भक्ति का माहौल डेवलप करेंगे, है ना, अगर माता पिता भक्त होंगे तो उनके घर पे भगवान जी और नित्य मुक्त साधु जो भी होते हैं वो बॉर्न करते हैं, है ना. तो इसीलिए हमें ज़्यादा करके कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे फैमिली में, हमारे घर के अंदर ऐसा कृष्णा कॉन्शियसनेस का एनवायरनमेंट बनाए कि भगवान जी खुद वेट करें कि यार मैं कब यहाँ पर जन्म लूँगा. नित्य मुक्त साधु खुद वेट करें कि मैं इनके घर पे कब जन्म लेने आऊँगा, है ना. तो यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है. उसके बाद में ये सारी मतलब कन्वर्सेशन है. एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, आप सभी डिवोटीज़ को, कि ये जो कन्वर्सेशन हो रही है ना, इसे हमें ध्यान में रखना है ना. ध्यान में क्यों रखना है? क्योंकि जैसे अभी प्रभुपाद जी को पूरी ज़्यादा पसंद थी रादर दैन चपाती. ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें जो लास्ट में क्विज होगा ना उसमें काम में आएगा. सो इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें करके रखना चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए. जस्ट अ मिनट. क्या किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? डू एनीवन हैव अ क्वेश्चन? ओके. एंड यहाँ पर बताया गया था कि बॉडीज चेंज होती है.
किसने हैंड प्रेस किया? बॉडीज चेंज होती है बट वे रिमेन द सेम। हम जीवात्माएं हैं तो बॉडीज चेंज होती है बट वी रिमेन द सेम। सो या ईशानी माता जी, क्या आप रीड करना चाहोगे? क्या प्रभु जी? क्या आप रीड करना चाहोगे? डेली हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स यहाँ से। हाँ. ओके। Daily hundreds and hundreds of people were dying. I was 1 year old or 1.5 year old. I have seen what was happening, but there was a plague epidemic. The plague was substituted by Sankirtana movement. This is the law of nature. If you become disobedient to God, or nature will give you trouble in so many ways. And as soon as you become submissive, surrender to Krishna, the Supreme Personality of Godhead, there will be no more natural disturbance. I have heard in 1898. I was born 1896, so I have seen also. I remember in Calcutta there was very virulent type of plague epidemic in 1898. So Calcutta became devastated. The people practically left Calcutta. Daily hundreds and hundreds of people were dying. I was 1 year old or 1.5 year old. I have seen what was happening. There was plague epidemic. I did not know. I later on heard from my parents. So one Babaji, he organized Sankirtana, Hare Krishna Sankirtana. When there was no other way, he organized Sankirtana all over the Calcutta. And in the Sankirtana, all people, Hindu, Muslim, Christian, Parsi, everyone joined. And they were coming, they were going to road to road, street to street, entering in every house. So that Mahatma Gandhi Road 151, you have seen the Sankirtana party we have received very nicely. There was light and I was very small. I was dancing, I remember. I just like our small children sometimes dances. I remember. I could see only up to the knees of the person who were joined. So the plague subsided. This is a fact. Everyone knows history of Calcutta. The plague was subsided by Sankirtana movement. Of course, we do not recommend that Sankirtana should be used for some material purpose. So Nama Apradha Shama Sabhakti Kriya Nama Namana Sankirtana. You can utilize Sankirtana for some material purpose that is not allowed. That is Nama Apradha, because Nama is the holy name of Krishna and Krishna, they are identical. You cannot utilize Krishna for your personal material benefit. That is Apradha. Krishna utilize the holy name of the Lord for some material purpose that is not allowed. So anyway, because ye athanam pradhayante, if you wanted some material benefit by chanting Hare Krishna mantra, you'll get it. But Nama Apradha, you won't get the aesthetic of loving God. That is the aim of chanting Hare Krishna mantra. How shall you elevate yourself to the platform of loving God? That is required. Sa ve usam paradharmo yato bhaktri adhasakya, for utilizing the holy name of some material purpose. But this happened. We got experience. I have heard. I have seen. Srimad Bhagavatam lecture 1.10.5 Mayapura June 2098.
Yes, Mataji, thank you so much. And can you summarize what we just read here? ओके अच्छा ट्राई करूँगी मतलब समझाना पड़ेगा No, you can say it in English. No, not an issue. In a short summary. कौन कैसे करके करूँगी ये Okay, you can try anything. अम, महात्मा गांधी रोड में तुम देखे हो संकीर्तन पार्टी बहुत अच्छे से हुआ था वहाँ पे लाइट था और वो बहुत स्मॉल थे वो भी डांस डांस कर रहे थे वो अभी भी रिमेम्बर करते थे जैसे भी कुछ छोटे छोटे बच्चे कुछ डांस करते हैं तो लाइक यू सब्सिडाइज ये एक फैक्ट था सब लोग जानते थे हिस्ट्री ऑफ कैलकुटा and the like you was subsidized by circa so I mean कैलकुटा में सन सर कीर्तना मूवमेंट के लिए ब्लैक यू सब्सिडाइज हुआ था ऑफ कोर्स हम रिकमेंड नहीं करते हैं जो सर कीर्तना मतलब कुछ मटेरियल चीज़ के लिए यूज़ किया हुआ जाए वो है नामा अपराधा मतलब नाम को अपराध करना और प्रमाण सर कीर्तना you can utilize सर कीर्तना for some material purpose मतलब तुम सर कीर्तना के लिए कुछ मटेरियल पर्पस कर सकते हो वो अलाउड नहीं है वो सब नहीं होता है वो नामा अपराधा है क्योंकि नामा ये कृष्णा का होली नेम है और कृष्णा दे आर आइडेंटिकल तुम कृष्णा के नाम के लिए वो सब मटेरियल चीज़ के लिए तुम्हारा पर्सनल मटेरियल बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकते वो वो अपराध है कृष्णा भगवान है तुम कैनॉट मतलब तुम इंगेज नहीं कर सकते हो लॉर्ड सर्विस सर्विस तुम कृष्णा को सर्विस करोगे कृष्णा तुमको सर्विस नहीं करेगा Yes, absolutely. Thank you so much, Mataji, for summarizing it for us. So, मैं वापस बता देता हूँ कैलकट्टा में एक प्लेग फैल गया है ना एंड उस प्लेग की वजह से काफ़ी लोग मीन्स दे वर लिविंग देयर बॉडीज बिकॉज ऑफ दैट प्लेग सो एट दैट टाइम हरे कृष्णा टीम केम देयर एंड डिड अ संकीर्तन मूवमेंट देयर है ना संकीर्तन मूवमेंट में क्या होता है दे लिटरली रिसाइटेड हरे कृष्णा महामंत्र अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन सो दैट वो महामंत्र के प्यूरिफिकेशन की वजह से ये जो प्लेग है उससे लोगों की जान बच पाए है ना एंड ऐसा हुआ भी मतलब दैट वाज सक्सेसफुल इवेंट है ना जो संकीर्तन बिकॉज कृष्णा को अगर हम बुलाते हैं तो कृष्णा मदद करने आते हैं बट यहाँ पे ऐसा बताया गया है प्रभुपाद जी ने जो मेंशन किया है कि कृष्ण और कृष्ण का नाम है ना जो हम राइट में लिखते हैं ना KRISHN है या संस्कृत में जो हम लिखते हैं कृष्ण कृष्ण और कृष्ण का नाम दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर सो हमें कृष्ण का नाम यूज करके किसी मटेरियल बेनिफिट को पूरा नहीं करना चाहिए बिकॉज दैट इज नाम अपराध है ना हमें अपने आप को कृष्णा की सर्विस में लगाना चाहिए ना कि कृष्णा को ये बोले कि कृष्णा आप मेरे इंद्रियों की तृप्ति करो आप मेरी ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दो है ना सो दैट इज नाम अपराध वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा कृष्णा इज नॉट अवर सर्वेंट कृष्णा हमसे प्यार करते हैं वो हमारे लिए काम करेंगे वो हमारी सेवा करेंगे बट दैट विल बी नाम अपराध ना सो इसीलिए कृष्णा का नाम गलत तरीके से यूज करना इज अ नाम अपराध दूसरा यहाँ पर जैसा बताया गया है कि कृष्णा एंड कृष्ण का नाम नॉन डिफरेंट है ना एक दूसरे से भिन्न नहीं है
अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अभी अभी कोई तो बोलेगा कि नहीं भाई, कृष्ण का फॉर्म इज रियल कृष्णा, बट हाउ कैन समवन से कि कृष्ण का नाम भी कृष्ण से इंडिफरेंट है ना? सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, उस टाइम पे श्री कृष्ण जी साक्षात रूप में रणभूमि में कई युद्ध कर रहे थे। एंड जब द्रौपदी ने कृष्ण का नाम पुकारा था, तो कृष्ण के नाम से वो साड़ियाँ आई थी। सो लिटरली कृष्ण नहीं आए थे, कृष्ण के पहले कृष्ण का नाम आ गया था वहां पर द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। सो इसीलिए ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई फर्क नहीं है ना? सो दैट इज व्हाट गिवन हियर, कि हमें कृष्ण का नाम मटेरियल बेनिफिट्स के लिए यूज नहीं करना चाहिए। सो लेट अस कंटिन्यू। जानवी माता जी, क्या आपका कोई क्वेश्चन था? प्लीज, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। जी प्रभु जी। यस माता जी, आपका कोई क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन, हाँ हाँ मेरा था। यस बोलिए। हाँ, तो मैंने जैसे कहा पहले कि पहले मतलब भगवान हमारे देश में ही इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमारे देश में माता पिता दोनों मतलब भक्त होते हैं। पर तब जब भगवान मतलब फॉर एग्जाम्पल जब राम जी थे, तब तो मतलब कोई अलग कंट्री नहीं था ना, तो तब कैसे वो सिर्फ यहाँ ही कैसे पैदा हुए? ये मेरा प्रश्न है। एक्चुअली देखिए, अगर आप एसेंस देखोगे ना, तो राम जी की माता जी कौशल्या माता जी एंड जो पिताजी थे महाराज दशरथ, ये दोनों ही भक्त थे, है ना? एंड उस टाइम पे एंड उस टाइम पे तो पूरे अर्थ पे उनका राज था, है ना? क्योंकि उन्होंने हाँ अश्वमेध यज्ञ किया था। अब उन्होंने हेडक्वार्टर्स अपना इंडिया में रखा था, तो दैट इज नॉट एन इशू ना। या जहाँ गंगा होगी, जहाँ गंगा बह रही होगी, वहीं पर तो वो हेडक्वार्टर्स लगाएंगे, क्योंकि उनके दादाजी ने जो भागीरथी गंगा बोलते हैं, है ना, उन्होंने हाँ। गंगा मैया को प्रकट किया था। दैट वाज इन इंडिया, सिंपल। अच्छा, जहाँ पे थैंक यू भक्त प्रभु। माता पिता होते हैं, वहीं पर भगवान आते हैं, सिंपल। अगर भक्त माता पिता अमेरिका में होंगे तो अमेरिका में चले जाएंगे, कोई इशू नहीं। सो या थैंक यू प्रभु। सांची माता जी, क्या आप रीड करना चाहोगे? यस ओके। यस माता जी, क्या आप रीड करेंगे? प्रभु। Yes, you can read from. So, in my childhood, when I was one. So in my childhood, when I was 1.5 years old, I suffered from typhoid. Prabhupada. So in my childhood, when I was 1.5 years old, I suffered from typhoid. And, and the doctor, Karthik Chandra, he said that please give him chicken juice. Refused. No, no, he cannot. No, no, he cannot. He has to be. Now he has become very weak. So I cannot allow. Okay, I should stay in my own house, he said. So it was sent from his house, and when it was given to me, immediately I began to vomit. And my father threw it away. The doctor asked that uh, this was no, no, then don't bother. Slowly I heard the allopathic system of medicine introduced all these things in India. Otherwise, they did not know. Rome Conversation, August 2, 1970, Paris. I asked my mother in childhood, my dear mother, how came out bed. I remember. Like child, he does not know how he is cute. I know. I asked my mother in my childhood, dear mother, how did I come out from your belly? I still remember my mother told me her navel. Come out from this place anyway a child cannot understand. But when he grows up, he understands everything. So how Krishna consciousness acts? This is how this transcendental sound cleanses your heart. Not understand at the beginning, but if you stick to it and if you practice it, then you understand. Let's point 1.7 San Francisco was born 1967. Stay
So will you share continue? Yes, Mataji, can you explain in short what you just read? Okay, I will see. So when Prabhupada was small, of 1 year old, he was suffering from typhoid. So the doctor told to give him chicken, but his father refused. But the doctor said that it is important, but still he refused. Uh, so then the doctor said that don't worry, I will prepare it and send it. But then when he sent to Prabhupada, uh, he started to eat it, and then his father threw it away. And then he asked his mother that how they come out from your belly. Uh, then it said that we will not that when we have this lack of consciousness. Uh, so and like principal concept of this transcendental sound will please our heart. We will understand in the beginning, but after some time we will understand it. If we practice it, and then we will understand. Yes, Mataji, thank you so much for summarizing it for us. So, I would like to add something. Uh, we all have four regulative principles. क्या कोई बताएगा मुझे कि फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को क्या कौन कौन से हैं? No gambling, no cheating, no expectation, no illness. यस, एंड उसमें आता है नो मीट ईटिंग, एंड यहाँ पे प्रभुपाद जी को बोला गया था कि चिकन जूस पिलाना है उन्हें, एंड पूरी फैमिली वैष्णव है, सो दे आर ऑलरेडी आर नोन विद दीज रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, है ना. सो इसीलिए उनके पिताजी ने अपोज किया, बिकॉज दैट इज सेम. ईटिंग मीट, ईटिंग नॉन वेज इज अ सिन, है ना, बहुत बड़ा पाप है. सो इसीलिए उन्होंने मना किया. सो यहाँ पर वो दृष्टांत आता है कि यस, नो गैम्बलिंग. सो यहाँ पे वो दृष्टांत आता है जहाँ पर आपको माया देवी ना फोर्स करती है कभी कभी वो चीज़ करने के लिए, है ना, जो कि अपराध होता है, एंड जानबूझ के टू टेस्ट यू. माया देवी इज द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, and she will keep testing you again and again and again and again and again to check your conviction, how much convinced you are upon Krishna. So कृष्णा ने भगवत गीता में बोला है पत्रम पुष्पम फलम तो यम. उन्होंने अपना मेन्यू कार्ड दिया है ना. कृष्णा ने ऑलरेडी उन्हें क्या क्या अच्छा लगता है ना, उसका मेन्यू कार्ड ऑलरेडी भगवत गीता में दिया है. दैट वाज पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना. You can offer me a leaf, you can offer me a flower, you can offer me fruits, you can offer me jal. Toyam, that means water. So whatever you will offer me, among these three things, I will accept it, है ना. But क्या उन्होंने ऐसा बोला कि KFC चिकन दे हम, तंगड़ी कबाबम, चिकन लॉलीपॉपम, ऐसा कुछ तो नहीं बोला ना उन्होंने. सो उन्होंने मेन्यू कार्ड तो क्लियरली सेंड बता दिया है ना. तो उस मेन्यू कार्ड के बाहर की चीज़ें करने के लिए आपको माया फोर्स करेगी, एंड उस टाइम पे आप तभी बच पाओगे जब आप एसोसिएशन में रहोगे. यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को बचपन में जब डॉक्टर फोर्स कर रहे थे, है ना, दैट वाज नॉट डॉक्टर फोर्सिंग हिम, दैट वाज माया देवी फोर्सिंग हिम टू ड्रिंक द चिकन जूस. बट क्योंकि वो अपने वैष्णव एसोसिएशन के साथ में थे, अब वहाँ पर उनके पिताजी ने उन्हें प्रोटेक्ट किया. वैसे यहाँ पर सिद्धांत ये बताया जाता है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जब तक आप वैष्णव एसोसिएशन में नहीं रहोगे तब तक माया आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, है ना. एंड जब आपके पास वैष्णव एसोसिएशन आ जाता है उस टाइम पर लिटरली वो वैष्णव आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम माया देवी. तो दैट इज़ व्हाट इट इज़. एंड उसके बाद में प्रभुपाद जी ने दूसरे वाले दृष्टांत में हमने सुना कि प्रभुपाद जी अपने मम्मा को पूछ रहे थे कि हाउ डिड आई कम आउट ऑफ फ्रॉम योर बेली, है ना. अब वो इतने छोटे थे, उनकी माता जी उनको क्या ही समझाएगी.
बट जैसे जैसे प्रभुपाद जी बड़े हुए वैसे उनको समझ आया। तो वैसे ही व्हेन वी आर neophyte in Krishna consciousness, we are literally like that innocent child of like Prabhupada ji was. हमें नहीं पता कि ये हरे कृष्णा महामंत्र हाउ विल इट बेनिफिट मी, सिर्फ कृष्ण का नाम लेने से ही क्या फ़ायदा होता है ना। हमें तो जैसे हम बोलते हैं कि गरीबों को खाना देना चाहिए, कंबल देना चाहिए, जिनके पास घर नहीं है उनको कुछ सुख सुविधा दे देनी चाहिए, है ना। दरिद्र नारायण ऐसा भी कंसेप्ट आता है लोगों के ऊपर कि जो गरीब है उनको ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, कृष्णा उससे खुश होंगे। सो सो लिटरली जब हम नियोफाइट स्टेज में होते हैं, जब हम चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं, जब हम प्री मैच्योर फेज में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ भक्ति, तब हमें नहीं पता होता है, बट हमें अपने माता पर मतलब हमारे गुरुजनों पर भरोसा रखकर धीरे 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 हमें वो कन्विक्शन डेवलप होगी। सो या दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। क्या कोई ऐड करना चाहेगा कुछ? ओके एंड क्या कोई रीड करना चाहेगा? प्रभु जी में से है क्या कोई? वुड एनीवन फ्रॉम these devotees like to read? Satya Prabhu? Sorry, Prabhuji, I can read today. Okay. So क्या कोई हैंड रेज करेगा? ओके ओके, दरिद्र नारायण। एक्चुअली ना एक ऐसा कंसेप्ट आया हुआ है मार्केट में कि भगवान की सेवा, मंदिर में जाके सेवा, ये सारी नहीं करनी चाहिए, है ना। और हमें जो गरीब लोग हैं उनकी ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि नारायण खुद गरीब बनकर आते हैं ताकि हमसे सेवा करवा सके। So that is मिथ्या, that is false concept. दरिद्र नारायण, नारायण दरिद्र कैसे हो सकते हैं? क्योंकि दरिद्र मीन्स पावर्टी बेस्ड, एंड नारायण के चरणों में तो खुद लक्ष्मी पड़ी होती है। तो हाउ कैन नारायण बी दरिद्र, है ना। दैट इज इलॉजिकल। बट वो क्या करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा नीडी पर्सन है, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनकी सेवा करेंगे तो उनसे भगवान जल्दी खुश हो जाएंगे। लिटरली मैं आपको बोलता हूँ, फ्री में मतलब ऐसा हुआ है, मैं वो गैंगस्टर का नाम नहीं लूँगा। एक बहुत धनी व्यक्ति गया ऑर्फनेज में एंड उन्होंने बोला कि मैं सारे बच्चों का स्पॉन्सर करूँगा एजुकेशन, है ना। अब उस बच्चे को बचपन से ही सारा एजुकेशन, सारी सुख सुविधा, सारी कंफर्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, है ना। और वो जब बड़ा हुआ, क्योंकि उसको सारा कुछ फ्री में मिल चुका था, है ना, तो वो बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया और पूरे वर्ल्ड के लिए वो खतरा बन गया। तो अब समझो, हम अब वो धनी व्यक्ति तो सेवा करना चाह रहा था, बट सेवा का फल उसको क्या मिला कि उसने गैंगस्टर पैदा करवा दिए, है ना। सो ये बोलना कि भगवान का नाम नहीं जपना है, भगवान की सेवा ना करते हुए हम इन गरीब और नीडी लोगों की सेवा करेंगे तो वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। बट फिर भी अगर आप किसी गरीब की सेवा भी कर रहे हो, सो आप सिर्फ उसकी बॉडी की सेवा कर रहे हो, आप उसकी सोल की सेवा नहीं कर रहे। इटर्नल सेवा इज टू सर्व द सोल, and eternal seva for the soul is to connect the soul with supreme personality of Godhead. बाप के पास बच्चे को छोड़ोगे वो अच्छी सेवा है, या मेले में पड़े हुए बच्चे को सिर्फ आप खाना पीना दे रहे हो, कंबल दे रहे हो? वो खुश तो रह जाएगा बट पापा से तो नहीं मिल पाएगा ना। तो बेटर है ये सारी चीज़ें ना देते हुए हम डायरेक्ट अगर किसी सोल को सुप्रीम पर्सन, परम पिता के पास ले जाके छोड़ेंगे तो वो ज़्यादा बेटर सेवा रहेगी ना। सो क्या आप सभी को सेटिस्फेक्शन मिला? शुड वी Yes, कंटिन्यू very फर्दर? यस। एंड कोई रीड करना चाहेगा? ओके, हरे कृष्णा 1, हरे कृष्णा 2, हरे कृष्णा 3 मैं रीड करूँगा। In our childhood, I remember that even for going to the privy, I wanted permission of my mother. Can I go? This is nature. Oh, कितना सुंदर। Just like father and son, little child, he wants to do something and wants permission from the father or the mother, and he gives. In our childhood, I remember that even for going to private, I wanted permission of my mother. Can I go?
This is nature. That is nature. Mother is not restricting me. Still, I am asking permission of mother. कितना सुंदर है ये. Can I go? Can I go? Can I go? I remember this is the natural. This is natural. Similarly, we cannot do anything without the permission of Supreme Personality of Godhead, Super Soul, within the heart. Bhagavad Gita, lecture 1.3, no, 13.23. Bombay, October 22, 1973. We were taught there is a grain of rice on the ground, and if it is untouched by your feet, you pick up the grain and touch on your head. In our childhood, actually, what I am doing, it was all taught in our childhood by our parents. लिटरली यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैं जो 70, 75 एंड 80 ईयर्स ऑफ एज में जो कर रहा हूँ, जो मेरा बिहेवियर है, ये बिहेवियर is based on the teachings which I was taught in my childhood by my parents, by my family, by my society. We were taught if there is a grain of rice on the ground and if it is untouched by your feet, you should pick up the grain and touch your head. This was our training. The idea behind that, the grain of rice is not man-made. It is sent by God. Oh God, give us daily bread. So here is the bread. It is God's mercy. Just see how great idea. What is given by God, that is also God. This is God consciousness. Srila Prabhupada in the Room Conversation, June 28, 1974. तो मैं एक एक पैराग्राफ लूँगा, so that is easy for me. So यहाँ पर बताया गया है in this conversation. अब प्राइवी पता है क्या होता है? प्राइवी is something which you will not share with your family. कि मेरे को बाहर जाना है ना, एक जगह जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है ना. प्राइवी is like something secret. You have been allowed to know about it. Okay, means सो प्राइवेट जगहों पर जाने के लिए भी श्रीला प्रभुपाद जी अपने मदर से परमिशन लेते थे कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, है ना. सो ये नेचर होता है, मीन्स यू शुड आस्क परमिशन फ्रॉम योर मदर. अब मम्मा मना तो नहीं करेगी, है ना, ये पता है. मम्मा मना तो नहीं करेगी, ये हमें पता है, बट फिर भी हमें परमिशन मांगना चाहिए उनसे. ये कल्चर है ना. दूसरा, अगर मम्मा मना भी कर देती है, फिर भी हमें पूछना चाहिए कि मम्मा क्या मैं जा सकता हूँ. वो मना कर देती है तो चुपचाप घर पे बैठो, पापा जाओ मत, नहीं तो मम्मा डांटेगी. बट हमें बाहर भी जाना है तो वी शुड सीक परमिशन फ्रॉम आवर एल्डर्स, जो भी हमारे गार्डियन है, जो भी हमारे से एल्डर है ना. एंड एक होता है, हम सब इस्कॉन टेम्पल्स में रेगुलरली विजिट करते हैं, है ना. दैट इज़ नेचुरल फॉर अस, हम विजिट करते हैं. सो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक वैष्णव एटिकेट कि जब आप विजिट करते हो ना, उस टाइम पे अगर आपने परमिशन लिया अपने मेंटोर से कि मैं आ रहा हूँ, मतलब उन्हें बता के आए तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो भी ठीक है. बट जब टेम्पल से आप वापस घर आना चाहते हो ना, उस टाइम पे यू शुड सीक परमिशन फ्रॉम योर मेंटोर, फ्रॉम द एल्डर डिवोटीज, फ्रॉम द सीनियर डिवोटीज कि प्रभु जी, माता जी, अब इजाज़त दीजिए मुझे, मैं घर जाना चाहता हूँ, लेट ज़्यादा हो रहा है. अब वो मना नहीं करेंगे, बट फिर भी अगर आप उनसे परमिशन लेके जाओगे ना, यू विल बी ब्लेस्ड बाय देम कि बहुत मतलब इनका नेचर कितना अच्छा है, वो भगवान जी से प्रे करते, तो मर्सी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होती है आप. सो या जब भी आप मंदिर विजिट करते हो तो आपको आपके सीनियर डिवोटी से एट द टाइम ऑफ एग्जिटिंग मंदिर यू शुड सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम. एंड वैसे ही आपको घर पे भी फॉलो करना चाहिए. आप कहीं पर भी जाते हो, घर पर बता के जाना चाहिए. एंड इन आवर सेकेंड पैराग्राफ हमें भी ये पता चला कि जितना अच्छे से हमारी परवरिश बचपन में होगी ना, उसका इफेक्ट हमें लॉन्ग टर्म में दिखेगा, है ना. दैट विल बी आवर इनबिल्ट बिहेवियर, है ना. दैट विल बी आवर नेचुरल बिहेवियर. तो यहाँ पे हमें बताया जाता है, इनफैक्ट हमारे घर पर भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट अन्न, क्योंकि the grains, the food we are eating is not made by us, it is not produced by us, it is produced by God. So हमें उसके लिए सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जो गॉड है, ही इज
गॉड इन द फॉर्म ऑफ फूड फॉर अस. जो नरिशमेंट हमें मिलते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है कि जो पानी का टेस्ट होता है ना, द टेस्ट ऑफ वाटर इज मी. द नरिशमेंट यू गेट फ्रॉम द फूड, द नरिशमेंट यू गेट फ्रॉम ईटिंग योर फूड, दैट नरिशमेंट इज मी. सो अगर आपको कुछ ग्रेन्स ऑफ सैंड्स, ग्रेन्स ऑफ नीचे गिरे हुए दिखे तो हमें उसे सिर पर, माथे पर टच करना चाहिए. एंड वी शुड रिस्पेक्ट इज एज गुड एज गॉड. एंड एक दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ. वेन एवर वी एंटर इन मंदिर ना, जब भी हम टेम्पल विजिट करते हैं, आपने देखा होगा कि जो स्टेप्स होते हैं ना, लोग उसके पाँव पड़ते हैं, है ना. अगर स्टेप्स होते हैं मंदिर में, या जो वो होता है एंट्रेंस होता है ना, एंट्रेंस पे ही लोग पाँव पड़ते हैं नीचे झुककर. सो ये क्यों होता है? क्या किसी को इसका रीज़न पता है कि मंदिर के जो स्टेप्स होते हैं लोग वहाँ पर पाँव क्यों पड़ते हैं? हरे कृष्णा, क्या किसी को पता है कि मंदिर के स्टेप्स हाँ। के पाँव क्यों पड़ा जाता है? प्रभु जी, मैंने सुना था एक बार कि जो मंदिर होता है वो भगवान होता है, और जो स्टेप्स होते हैं वो भगवान के चरण होता है। एग्जैक्टली exactly. जो स्टेप्स होते हैं, जो एंट्रेंस होता है मंदिर का, अगर स्टेप्स ना हो तो वो, ये दोनों ही चीज़ें भगवान के चरण होते हैं. सो वेन एवर वी आर एंटरिंग मंदिर, वेन एवर वी आर एंटरिंग अ टेम्पल, वी शुड पे ओबीसियंसेस टू द स्टेप्स ऑफ भगवान जी ना. सो दैट इज व्हाट इट इज. सो वी वुड कंटिन्यू फर्दर. क्या कोई रीड करना चाहेगा? यस, ईशानी माता जी, यू कैन रीड. This is my childhood practice. I do not like to see anyone wasted, nor I waste. Tamala Krishna, you had everyone busy trying to keep up. Even now, I see that you're not wasting all a second. Even in the middle of the night, you call Prabhupada. Know that my childhood is this is my childhood practice. I do not like see anything wasted, nor I waste. I have told many times that on the street I am going to be and seeing a tap is open. I don't like to see. I stop. Why should it be wasted? SP Room Conversations, February 20, 1977, Mayapura. My father also keeps. My father was also keeping a cloth shop. It was so base sinful rice since he will keep it in the middle of the shop. There are rats, so the rats will take the rice and not cut even a single cloth. That is practical. Prabhupada, that is the system that is mentioned in Bhagavata. That if animals, like monkeys, they come in our garden to eat, they do not prohibit. Let him. He is also Krishna's part and parcel. Where he will eat if you prohibit. That is very practical. I have got another. This is told by my father. My father's elder brother was keeping a cloth shop. My father was also keeping a cloth shop. So it is in the village. So my uncle, what he would do before closing the shop, he'll bring one, what is called Bhagwan, a bowl, Prabhupada, bowl, a big bowl, or is it what do you call? Where do you keep water? Bhagwan, pot, Prabhupada, basin, one of the basin for rice. He will keep in the middle of the shop. There are rats. So the rats will take the rice. They will not even cut a single cloth. It is practical. Yes. They are also animals. Give them food. They will not create any disturbance. Give them food. Yes, because cloth are very costly. And there are rats. If one cloth is cut by the rat, then it is a great loss. So to have this loss, he'll put a basin. Rice was nothing. Rice. In our childhood, we have seen two. We have seen two annas per year. That is with profit. You see, one is based from rice. It does not cost even an anna. So by giving one anna worth food, you save so many hundreds of rupees cost. Or otherwise, if they'll be hungry, they'll cut it.
SP Room Conversation, June 11, अंकल को पूछो एक 1974, शेर कितना Paris. होता है? My father was doing business and he was a great devotee. He was engaged with only his puja. My father, एक शेर कितना होता है? actually, his business was 7 puja. किलो. Prabhupada. My father was doing business and he was a great devotee. Tamala Krishna. And you were also doing business during when you were Prabhupada. Yes. Up to 1 o'clock and 2 o'clock, he was engaged only with his puja. My father, he was going late. At 12 o'clock to bed, then was to use to rise a little late. At about 7, 8, when then taking bath, sometimes purchasing from 10 o'clock to o'clock, he was engaged in puja. Then he would take his lunch and go to business. And in his business shop, he was taking a little rest for 1 hour. He'd come from business at 10 o'clock at night. And again, puja. Regularly, actually, his business was puja. For living, he was Harisori. Yes, doing some business. Tamala Krishna, yes. Prabhupada. We were sleeping. Father was doing arati. Ding, 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 ding. Ding, Tamala Krishna. You heard the bell. Prabhupada. And then he would take his night dinner and not dinner. Some puris or paratha. He was also fond of puffed rice. In later age, he was simply puffed rice and milk. So anyway, puja was his main business. SP Room Conversation, February 18, 1977, Mayapura. Yes, Mataji. So let us summarize. Big cow. Yes. Prabhupada, that is the system. Explain करना है. Yes, means जितना भी आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये है सिस्टम. वो बोला गया है भगवत गीता में. जो एनिमल्स है जैसे मंकीज, वो हमारे गार्डन में आके खाते हैं. डोंट प्रॉफिट लेट. हाँ हाँ, खाने दो. हाँ, वो भी तो कृष्णा का एक क्रिएशन है ना. वेयर ही वो ईट इफ यू प्रॉफिट. हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है. हाँ, मेरे पास दूसरा है. ये मेरे पापा से बोला गया था. मेरा पापा का बड़ा भैया वो एक ना मतलब कपड़ा के दुकान में एक बिजनेस कर रहे थे. मतलब शॉप. मेरे पापा भी एक क्लॉथ शॉप मतलब रख रहे थे. मतलब कपड़े का दुकान चला रहे थे. और वो एक क्या लेंगे मतलब पहले दुकान को क्लोज करने के पहले क्या करेंगे, क्या लाएंगे. भगवान बोले मतलब एक कटोरी और प्रभुपद. हाँ, कटोरी बिग मतलब बड़ा कटोरी. और क्या बोलते हो मतलब तुम जो पानी रखते हो और वो वगैरह. भगवान, हाँ, पॉट. Prabhupada, basin is the base. So one basin for. ये भगवान, ये बेसिन क्या होता है. Yes, yes. बोलिए. तो मैं मतलब मैं एक मिडिल मतलब शॉप के ना सबसे बीच में रखता हूँ. और अगर वहाँ पे मतलब चूहा आए, चूहा आने से वो उसको मतलब कपड़ा को काटने के मतलब पहले वो सेव कर दे. मतलब बहुत वो भी. हाँ, क्योंकि कपड़े बहुत कीमती होते हैं. मतलब
खेल रहे थे, और अगर वहाँ पे एक चूहा आ गया और कपड़ा को डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम्हारा ही लॉस होगा ना। तो इसलिए उन लोगों के लिए एक बेसिन फुल राइस रख दो, और अगर वो रखा जाएगा तो वहाँ पे ना एक भी ना मतलब एक डिस्ट्रॉय मतलब जो बाइट करते हैं ना रैट्स, उसमें एक सिंगल भी चीज़ नहीं होगा। हाँ, वो सब खा के चला जाएगा। हाँ, और वो प्रॉफिट है। और अगर वो करते हो तो तुम बहुत पैसा तुम बचा लोगे उस मतलब उस कपड़े से खराब होने के लिए। सो बाय गिविंग वन इन आवर्स फूड, Yeah. मतलब वो कितना सारे सेव करते हैं। Yes. मतलब जैसे 100 रुपीज़ का क्लॉथ सेव कर देते हैं। अगर अगर नहीं करते हैं तो वो लोग बहुत भूख लगेंगे और वो सब कपड़ा खत्म। Yes, वो सब काट लेंगे। So I would like to mention, मैंने अभी मेरे मतलब सीनियर से पूछा, 1 आना that means मोटा मोटा 20 पैसा of Indian rupees, 20 पैसा, and 1 share is equal to 7 kgs. So by investing 20 paisa for 1 share rice at the cost of 20 paisa, Prabhupada ji's uncle would save clothes which were costing about hundreds and hundreds and hundred rupees. So yeah, he was a great businessman. अब यहाँ पर सीखने वाली देखो, हर चीज़ में ना एक तत्व होता है, मीन्स हर पैराग्राफ में we are to find out what it is showing us, what it is trying to teach us, है ना। तो यहाँ पर ये सीखने वाली बात है, यहाँ पे ये मॉरल है, यहाँ पे ये क्रक्स है इस पैराग्राफ का कि क्या वाटर हमने बनाया है? नहीं। क्या हमने फूड बनाया है? नहीं। क्या हमारा किसी के ऊपर अधिकार हो जाता है कि अगर मेरा गार्डन है ना, सो क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि ये पूरा गार्डन मेरे अकॉर्डिंग चले? नहीं। सारा मेरा जो गार्डन है वो सिर्फ मेरे को संभालने के लिए दिया गया है, बट प्रकृति माता उसका पालन पोषण कर रही है ना। सो इसीलिए प्रकृति पर प्रकृति का ही हक होता है। सो वैसे ही पानी अगर दिख रहा है कि वेस्ट हो रहा है कहीं पर, इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ रोड एंड इफ़ यू सी दैट फ्रॉम अ टैप the water is drip by drip by drip, drop by drop by drop, it is wasting. So we should go there and we should stop the wastage of water, because that water is given to us from the Krishna's mercy. वो पानी हमने नहीं बनाया तो हम क्यों वेस्ट करें? सो इसीलिए हम अगर देखते हैं, चाहे वो टैप वाटर हमारा ना हो, है ना, किसी और का हो, बट अगर वेस्ट हो रहा है दैट मीन्स कि हम कृष्णा का वाटर वेस्ट होने दे रहे हैं, है ना। सो हमें जाके उसे उस वेस्टेज को ख़त्म करना चाहिए, बंद करना चाहिए, सो दैट वी कैन सेव वाटर विच इज़ गिवन बाय कृष्णा। एंड वैसे ही प्रकृति में सिर्फ हम नहीं रह रहे हैं, वहाँ पे मंकीज भी हो रहे हैं, वहाँ पे एंड्स भी हो रहे हैं, वहाँ पे मंकीज भी होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के जानवर होते हैं, 84 लाख योनि है। We are surrounded by so many animals and birds and creatures, so we should try our best to serve them also, because they all are on a subtle basis present here because of Krishna's mercy. So yeah, that was the crux of this paragraph. सो एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रभुपाद जी अपने पिताजी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनका मेन बिजनेस पूजा था। दैट मीन्स फॉर वी वैष्णव अवर, अब देखो यहाँ पे मेन बिजनेस पूजा इन द सेंस क्या होता है, मतलब वो पूजा में बिजनेस कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद जी के पिताजी का जो बिहेवियर था ना वो कृष्णा सेंट्रिक था। इन एनीथिंग, इन एनी सिचुएशन, इन एवरी सिचुएशन he would think about Krishna. He would be present with Krishna. He would be present for serving Krishna. So इसीलिए उनका जो सेंटर था वो कृष्णा था। तो ऐसे ही हमें भी अपनी लाइफ में कृष्णा को सेंटर बनाना चाहिए। वी शुड ट्राई टू बी living a Krishna centered life, not a Maya centered life. So yeah,
दैट वाज दिस फ्रॉम दिस पैराग्राफ. सो ओके, हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल. पेज नंबर 15 अभी एंड हुआ है. सो आप सभी को ना मुझे ये बताइए, आप सब लोग ग्रुप में ज्वाइंट हो ना? ईशानी माता जी, सांची माता जी, पावनी माता जी, नव्या माता जी, आप सब लोग ग्रुप में हो ना? जी यस प्रभु प्रभु जी। जी। यस. सो ग्रुप में एक लिंक दी गई है क्विज की, है ना? बेस्ड ऑन दिस, सो हमें वो क्विज सॉल्व करना है. एंड मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ, उस क्विज में जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना. सो आपको भी ध्यान में रहेगा. एंड फिर जब मैं मांगूंगा, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज शुभम गुप्ता. एंड व्हाट्सएप ग्रुप में JBM नाम से हूँ मैं, अगर किसी को जानना है तो. तो मैं जब पूछूंगा कि अपने अपने स्क्रीन शॉट्स बताइए कि आप सब लोगों का, आप सब डिवोटीज का क्या आंसर आया, क्या रिजल्ट आया, तो यू वुड बी शेयरिंग दैट विथ एवरीवन. So that is like we should motivate each other to participate in this online book reading, because we are not just reading book, we are serving Prabhupada ji directly, है ना? Prabhupada ji is here between us in the form of books. So by reading books we are serving Prabhupada ji. क्योंकि उन्होंने ये सारी बुक्स क्यों लिखी? हमारे लिए लिखी ना. हम ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या फायदा? How can we be great Vaishnava? How can we call ourselves Vaishnava if we are not reading Prabhupada ji books? So yeah. क्या किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी. ओके. हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी. मेरा मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक बात बोलनी थी हम्म, कि जैसे कि हम तो रोज ही देखते हैं सुबह जपा सेशन का लिंक। सो प्लीज़ जो भी ज्वाइन नहीं कर रहा है वो कृपया करके ज्वाइन कीजिए, बिकॉज उसमें हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज खुद हमारे साथ पर्सनली जपा करते हैं. सो एक प्योर डिवोटी का बस एक ग्लैंस काफ़ी है हमारा उद्धार होने के लिए. सो प्लीज़ आप सब एग्जैक्टली. ज्वाइन कीजिएगा, भी काम हो. मैं आपको इवन बताता आप हूँ. मंगल आरती करें, ठीक है. यस. यस माता जी. यस माता जी. थैंक यू सो मच फॉर दिस यस प्रभु अपॉर्चुनिटी. जी. And Loknath Swami Maharaj is a direct disciple of our Srila Prabhupada ji. Literally Loknath Swami Maharaj जी ने टच किया है प्रभुपाद जी को, उनके साथ रहे हैं, एंड प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दी है. एंड हर सुबह 4:30 बजे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी जपा करते हैं, एंड हमें इनवाइट करते हैं कि आइए हमारे साथ जपा कीजिए. सो लिटरली यू आर ऑन वीडियो कॉल वन ऑन वन विथ हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज. तो आपको सुबह सुबह ये लिंक सबमिट की शेयर की जाएगी बाय पावनी माता जी. एंड आप वहाँ पर जाकर सुबह 4:30 बजे ये जपा उनके साथ लोकनाथ स्वामी महाराज के साथ में डायरेक्टली कर सकते हो. एंड लिटरली लोकनाथ स्वामी महाराज इज सो मर्सीफुल, वो इंटरेक्ट करते हैं. हरे कृष्ण प्रभु जी, एक्चुअली हमें ज्वाइन करना है 4:15 से, क्योंकि 4:15 से लोकनाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल्स रहते हैं, तो हमें तब ज्वाइन करना है. एंड उसके बाद मैं और एक लिंक शेयर करूंगी 5:30 को, उसमें लोकनाथ स्वामी महाराज आएंगे. तो आपको ऐसा नहीं करना है किसी को भी कि अरे 5:30 को महाराज जी ज्वाइन करें तो हम 5:30 को ही ज्वाइन करेंगे. नहीं, आपको 4:15 से ही ज्वाइन करना है. यस. एंड जपा टॉक पूरा अटेंड करना है, बिकॉज जपा टॉक में लिटरली शिक्षास्त्र हम बता रहे हैं, एंड दैट इज आउटस्टैंडिंग. मैं क्या बताऊं, यस. 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 इतना डिटेल्ड क्लियर एक्सप्लेनेशन, दिमाग में बैठ जाएगा आपका ऐसा एक्सप्लेनेशन. और वो भी हाई लेवल डिवोटी से, हाँ, एडवांस डिवोटी से. इतने सारे सीनियर डिवोटीज है, एडवांस डिवोटीज है, उन्हें ये सारे तत्वों के बारे में ज़्यादा नॉलेज है लिटरली. तो अगर आप वहाँ पे विजिट करते हो, अगर आप जपा टॉक्स में इन्वॉल्व होते हो सुबह सुबह 4:15 AM ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. सो या 4:15 AM ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इस टाइम पर आपको जपा टॉक्स में इन्वॉल्व होना है. यस, एंड वन मोर थिंग कि आप जब 4:15 को ज्वाइन करेंगे ना, तो समटाइम्स प्रोवाइड किया जाता है लिंक चैट बॉक्स में, जिससे आप सीधा कृष्ण बंधु, एक्चुअली कृष्ण बंधु का, तो कृष्ण बंधु के ग्रुप से जुड़ सकता है. तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप 4:15 को उठे, मतलब उससे पहले उठे, तैयार हो जाए, एंड देन बैठे, चैंटिंग करे, और जब लिंक शेयर किया जाए, ऐसे नहीं रोज शेयर नहीं करते, कभी कभी शेयर करते, तो आप जुड़े ग्रुप से, एंड जो भी सेशंस होते हैं उन्हें अटेंड करें, बिकॉज कृष्ण बंधु
मैंने खुद देखा है, जैसे लाइफ में इतना परिवर्तित है, आप लोग तो पहले से एडवांस हो, इतना परिवर्तन आएगा, तो प्लीज काइंडली पेशेंस। हम इस लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें शिला बोला है कि जब डिवोटीज उनसे पूछते थे कि 2-3 लाइफ टाइम तो चले ही जाएंगे, तो शिला इस लाइफ टाइम में क्यों नहीं? तो प्लीज थोड़ा सा ट्राई कीजिए, कृष्णा आपके एफर्ट्स को देखता है। एग्जैक्टली। एंड मैं एक पर्सनल स्टोरी शेयर करूँगा। मैं जब भक्ति में नया नया था, एक्चुअली मैं अभी भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में पूरी तरह नहीं आया हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आने की। बट व्हेन आई वाज इन माय स्टार्टिंग फेज, लगभग 2 years फ्रॉम टुडे, है ना, 2 साल पहले, मैं जाता था, मीन्स मैं मंथली 1 या 2 विजिट देता था मंदिर में। एंड मंदिर में 1 या 2 विजिट देता था मैं। एंड मेरे जो मेंटोर थे ना, वो मुझे बोलते थे कि शुभम, यू शुड बी प्रेजेंट फॉर मंगल आरती। सुबह 5 बजे होता है, सुबह 4:30 बजे होता है मंगल आरती वहाँ पर। सो यू शुड बी प्रेजेंट फॉर मंगल आरती। एंड मैं बोलता था, प्रभु जी, आई एम सो मच स्लीपी एंड आई एम नॉट एबल टू वेक अप अर्ली इन दिस मॉर्निंग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ा हुआ था। सो आई वॉज अ स्पॉइल्ड ब्रैट एट दैट टाइम। आई स्टिल एम अ स्पॉइल्ड ब्रैट। सो या मैं मेरी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बट उन्होंने पता है मुझे क्या बोला था? एक बार मैं सोया रहा, एंड मैं मंदिर आने के बाद भी मंगल आरती अटेंड नहीं किया, एंड मैं गेस्ट हाउस में सोया रहा। उनका सुबह जी छः जी, हाँ बजे हाँ। उनका सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन आता है ना। उन्होंने बोला, शिवम कहाँ पर हो? मैंने बोला, प्रभु जी, आई एम हियर इन माय गेस्ट हाउस, एंड मैं अभी उठा, सॉरी मैं मंगल आरती नहीं आ पाया। उनका रिस्पॉन्स पता है क्या था? कि जो डिवोटी मंगल आरती अटेंड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो भक्ति का सिर्फ दिखावा कर रहा है। ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी अ वैष्णवा, बट ही इज नॉट अ वैष्णवा इफ ही इज नॉट अटेंडिंग मंगल आरती। एंड दैट लिटरली वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। एंड मैंने मैंने मेरे मेंटोर जी को बोला, मैंने मेरे मेंटोर को बोला कि प्रभु जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, दिल को दुख रहा है ना, प्लीज टेक बैक योर वर्ड्स। तो वो बोलते हैं कि दिस इज नॉट माय वर्ड्स, प्रभुपाद जी ऐसा बोलते थे, आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट प्रभुपाद जी सेड। अ डिवोटी इज अ डिवोटी if he is regularly attending Mangal Aarti. So literally, if you are not attending Mangal Aarti, that means कहीं ना कहीं भक्ति में यू आर कच्चा नींबू। तो मैं तो बहुत ज़्यादा कच्चा नींबू हूँ, मैं लिटरली आपको बोलूँ। बट पावनी माता जी के थ्रू, इतने ग्रेट वैष्णव के थ्रू, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सुबह 4 बजे, 4:15 बजे मंगल आरती अटेंड करना, एंड फिर हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज का संग करना, सो वाई शुड बी प्रभु जी, नॉट आप अवेल? रेगुलर आ रहे हैं क्या? कभी कभार, हाँ, थोड़ा। अरे, अच्छा अच्छा। यस, कभी कभी। एक्चुअली मेरे घर पे मतलब बहुत सारे, मेरी सारी दीदी लोग आए हुए हैं हाँ हाँ हाँ। समर वेकेशंस के लिए, तो लिटरली मुझे अच्छा, लेट हो जाता है। यस माता जी, बोलिए। सॉरी प्रभु जी इंटरप्ट करने के लिए, बट वन मोर थिंग, अगर आपसे नहीं उठा जा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं खुद आपको कॉल कर दूंगी, बस मुझे टेक्स्ट कर दीजिए कि माता जी हमें उठा दीजिए, मैं उठा दूंगी आप लोगों को। अरे माता जी, आप लिंक लिटरली नहीं भेज रहे, माता मैं जी, ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। लिटरली माता जी कितनी ज्यादा डेडिकेटेड है। शी इज सेइंग कि शी विल कॉल कोई यू एंड वेक डेडिकेटेड यू नहीं अप। हूँ मैं, मुझे कोई डेडिकेटेड नहीं है, मुझे डर लगता है क्योंकि मैंने देखा एक माता जी है जिन्हें मैं उठाने की कोशिश करती हूँ, माता जी उठ नहीं पाते, उनका फोन बार बार स्विच ऑफ हो जाता है। माता जी, मैं मैं क्या रेगुलर बताऊँ? तो उठ जाता हूँ, लेकिन आप हे लिंक नहीं भगवान, भेजते। हम तो 7:30 बजे ही नहीं उठ पाते हैं। कोई बात नहीं माता जी, आप नंबर दीजिए, मैं कॉल कर करके परेशान कर दूंगी, आप नंबर दीजिए अपना। यस। हे भगवान, मेरी मम्मी मार डालेगी मुझे, मतलब मेरे पास नहीं सोती है, मेरी मम्मी मार डालेगी अगर वो सेकंड से नींद ओके क्यों ओके, खराब किया कोई मेरा। बात नहीं। Okay, लेकिन as per our situation, we should slowly and slowly and slowly, gradually. It is all a process. It is not a firefighting mode में नहीं जाना है हमें कि या तो करना है या तो नहीं करना है. It is all a gradual process. So we should धीरे धीरे on a gradual basis accept it. सर, हाँ, मैं भी स्टार्ट में ऐसे ही सोचती थी कि मैं उठ जाऊंगी आज, फिर एक दिन उठी, दूसरे दिन उठी, तीसरे दिन खत्म। देन मैं हम बहुत परेशान हो गए, फिर हमने ड्यूटी से पूछने के बाद भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था मुझे, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा था प्रेयर। फिर हुआ गुरु महाराज की कृपा, देन जाके मैं नालायक
उठना शुरू किया मैंने। जैसे मुझे पता चला अरे बाप रे लोकनाथ स्वामी महाराज, अब तो उठना ही पड़ेगा। तो आप लोग भी सोचिए लोकनाथ स्वामी महाराज, अरे कितने बड़े डिवोटी है वो, उनका बस एक ध्यान काफी है, हमारा उद्धार हो जाएगा, गए हम भगवान धाम। भले ही घास को तिनका भी बन गए वहां, लेकिन जाएंगे तो कम से कम बस एक ध्यान काफी है उनका। इसलिए प्लीज मैं आप हम सब पैर पड़ती हूँ, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। 4:15 को, 4:30 को नहीं करना है, हम आएंगे 4:15 को करना है। हम आएंगे माता जी, आप पैर मत पड़िए, आप वैष्णवी हो, है ना। एंड मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो भक्त फिजिकली टेम्पल में विजिट नहीं कर सकते ना, बिकॉज मेरे प्लेस से भी इस्कॉन सेंटर इज लाइक 2.5 आवर्स फ्रॉम माई सिटी। सो अच्छा अच्छा लिटरली हम सब यूट्यूब पे मंगल जी आरती अटेंड कर सकते हैं। इस्कॉन मायापुर, इस्कॉन द्वारका, वॉट एवर इस्कॉन यू आर फॉन्ड ऑफ, जी जी you are connected to, you are looking forward to, you can do that. माता जी इसका ना हम भक्ति में कैसे आए, हम भक्ति में कैसे आए ना, इसका हम लिटरली एक सेशन रखेंगे। तो या वो दैट विल बी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु जी, बहुत मेहनत पड़ेगी। मैंने एक सेशन में सुना था कृष्ण बंधु के, माता जी बता रही थी कि शायद से इंट्रोवर्ट भी हो, भक्ति में कैसे है पूछोगे तो पूरा लेक्चर दे देगा। तो इससे बेटर मतलब दिमाग में रहना चाहिए कि भक्ति में है, गुरु कृपा, बात खत्म। क्योंकि हम जब बोलते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैं जब मतलब बोलती थी एक्सप्लेन करती तो धीरे धीरे अहंकार मैं ओके बोल ओके ओके। सकती माता जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, जी बोल। नहीं। हरी बोल माता जी, सॉरी बट आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सॉरी, मैं बोल रही थी कि वो सेशन जो आप बोल रहे थे वो भले ही दूसरे डिवोटीज के लिए फायदेमंद हो, लेकिन हमारे लिए नुकसानदायी हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले खुद को सुधारना है, बाद में दूसरों को सुधारना है ना। प्रीच तो करना ही है, फॉल डाउन हो जाएगा तो क्या ही प्रीच करेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली जानवी माता जी का क्वेश्चन ये था कि मैं भक्ति में कैसे आया। सो her question was कि how we were convinced to come to ISKCON, to come to Bhakti, to go and visit a lecture about Bhakti. So yeah, हमारा भक्ति के साथ में इंटरेक्शन पहला कैसे हुआ, माता जी का ये क्वेश्चन था। उसलिए मैंने बोला कि हम लोग जितने भी हैं, जितने भी डिवोटीज़ है यहाँ पर, वो डिवोटीज़ कैसे बने, वो कैसे बन रहे हैं, इसके बारे में हम एक सेशन रख देंगे एंड वी विल डिस्कस ईच अदर। वो एक इंटरैक्टिव सेशन होगा, सब लोग अपनी अपनी जो पर्सनल स्टोरी। एक्चुअली ना हम भक्ति में कैसे आए ना, ये लिटरली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और पर्सनल स्टोरी होती है एंड जी गूज हाँ बम्स आते हैं। मतलब जब हमको याद आता है कि हम भक्ति में आने के पहले कैसे थे एंड कैसे कृष्णा जी, अब कृष्णा जी टेढ़ी सरकार है, वो लिटरली टेढ़े इसीलिए खड़े होते हैं क्योंकि वो लिटरली टेढ़े है ना। वो घुमा घुमा के हमें बिल्कुल सही रास्ते पर लेके आते हैं भक्ति के। एंड वो जो रास्ता डिस्क्राइब हम करते हैं ना कि हम हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो वो लिटरली बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है फॉर ऑल ऑफ अस, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। सो हम उसका एक सेशन रखेंगे, बहुत 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 सुंदर सेशन होगा। मैंने मैंने मेरे ध्यान में रखा हुआ है कि वैसा एक सेशन रखेंगे। ओके प्रभु जी, ठीक है, पर उससे पहले मैं शरणागति सीरीज भेजूंगी और सबको देखना पड़ेगा, बता मैं कोई नहीं तो मैं अटेंड नहीं करती सेशन, और ना ही किसी और को अटेंड करने दूंगी। पहले शरणागति हाँ सेशन अटेंड करो, उसके बाद ही करना। यस 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 और ओके। मैं सबको कॉल कर करके पूछूंगी किसने अटेंड किया और किसने नहीं किया, आप बता ना रही है पॉइंट्स खाली। लेना, आप पॉइंट्स लेना सबसे कि पॉइंट नंबर 1 क्या था, पॉइंट नंबर 2 क्या था। हाँ, ओके, मैं बोल रही थी कि शरणागति सीरीज मैं भेजूंगी, कृष्ण बंधु का इतना अमेजिंग सीरीज है, आप आपका गुरु के प्रति ना आकर्षण और प्रेम दोनों ही बढ़ जाएगा। तो वो पहले अटेंड करना है एंड देन प्रभु जी हम अपना वो सीरीज रख लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। Yes, yes. On a gradual basis, we will do because not everyone in this group is at the topmost level. मैं तो लिटरली बहुत नीचे के लेवल का हूँ, है ना। तो मैं पहले उस लेवल पे आने की कोशिश करूँ पहले, फिर धीरे धीरे हम करेंगे कुछ ना कुछ। यस चांदी माता जी, यस आपका कोई क्वेश्चन था? प्रभु जी हमें उस सेशन में सब सच बताना पड़ेगा। देखिए आप
उसको सिनेमैटिक वैसे डिस्क्राइब भी कर सकते हो, है ना। बट अभी नहीं, दैट इज़ नॉट अ कंपल्शन। अगर आप कंफर्टेबल हो कि अपनी स्टोरी बताने में कि आप भक्ति में कैसे आए, सो दैट विल बी गुड फॉर अस ना। हमें मतलब लिटरली किसी वैष्णव को कृष्ण जी कैसे लाते हैं भक्ति में वापस से, वो जानने मिलेगा। तो Yeah, दैट विल बी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। yeah. या तो क्या किसी का और कोई क्वेश्चन है, सजेशन है? अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी किसी बात को बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। आई एम अ सर्वेंट ऑफ योर्स। आई एम लिटरली ट्राइंग टू बी हाँ, सर्वेंट बाबू जी रहने दीजिए, आपसे गलती नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है। आपके डिक्शनरी में गलती नाम का शब्द नहीं है। ऑफ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दुखालयम में जन्म लिया हूँ बेस्ड ऑन माय कर्मास, इसलिए मैं गलती के लिए बाध्य हूँ। हाँ हाँ, वैष्णवा से इसलिए अपेयर होता है ताकि बाकी सबको उद्धार कर सके, और आप सुनने में आते हो ना। देखो, ये हम बुक्स में, ये जो प्रभुपाद जी की बुक्स में जो हम देख रहे हैं ना, तो नित्य बद्ध जो है ना, दैट इज माय डेफिनेशन, नित्य मुक्ता नहीं। तो आप नित्य मुक्ता के साथ मेरी कंपैरिजन मत हाँ, मुझे खांसी आ जाएगी, आप ऐसे मत बोलिए। कीजिए। ओके One ओके thing ओके कि ओके, आप, सो हम क्या सेशन एंड कर सकते हैं अब? प्रभु हाँ जी, हाँ मैं एक हाँ, छोटा करिए, सा जो मैं इंसिडेंट बोल बताऊं। सकती यस 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 प्रभु जी। मैं आपको बता रहा था ना कि मेरा कन्विक्शन पावर थोड़ा कम है, तो माया मुझे मेरे ऊपर बहुत ही हेवी हो जाता है। अरे बहुत बहुत भी अच्छा बता लग रहा रहा था। है। यस और बोलिए। एक बार ये हुआ था कि मेरे फैमिली के साथ बात हुआ था, तो वो लोग कह रहे थे कि मंत्र चैंटिंग क्यों कर रहे हो। तो हम्म, मैं आपको बता रहा था ना। हम्म, तो मैं उनको समझाया, उसके बाद क्या हुआ, मैं उस रात को नरसिंह भगवान को बहुत पुकारा था, ठीक है। तो उसके अगले दिन मैं सोचा कि ठीक है, आज नहीं मंगल आरती अटेंड करने जाना है, मैं सो रहा हूँ आज। हम्म। तो 3:30 को मैं अलार्म देता हूँ, तो 3:20 उठ गया अपने आप। उसके बाद अलार्म ऑफ करके सो गया। और उसके कुछ टाइम के बाद मुझे ना मतलब शेर की रोर सुनाई दी। और मुझे लगा, भाई क्या है ये, ऐसा पहले कभी हुआ है, पहले कभी हरी मेरे साथ नहीं हुआ है। बोल हरी तो उसके बाद बोल। मैं उठ के मंगल आरती अटेंड करने चला गया। लिटरली आप कितने ऊपर लेवल पे हो, लिटरली। प्लीज एक्सेप्ट माय मोस्ट हम्बल ओबीसेंसेस कि नरसिंह भगवान खुद आपको उठाने आते हैं कि मैं चल मंगल आरती के लिए। हाँ, क्यों इतना अ, सोता पड़ा है। लिटरली लिटरली। एंड ये रियलाइजेशन होते हैं लिटरली, मीन्स व्हेन जी जी यू आर कन्विंस्ड ना, तो कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं। एंड मैं अपने जी हाँ पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कृष्णा बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकेट करते हैं। एंड मैं आप सब लोगों को एक सीक्रेट बताऊँ? क्या किसी को जानना है सीक्रेट? कि अगर आप जी प्रॉब्लम में मुझे फंस जानना है, जाओ। मुझे जानना है। यस यस। एंड बस आप ही को जानना है, मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा फिर। ओके। नहीं पावनी माता जी, ओके, सिर्फ सीक्रेट जानवी माता जी को जानना है, किसी और को नहीं जानना है। प्लीज रेज योर हैंड यस जिसको प्रभु जी, जानना है। बोला मुझे जानना बताइए है, बताइए। मुझे है। जानना है। यस, ओके 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 ओके। मैं भी अपना हैंड रेज कर लूँ, जस्ट अ मिनट। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन है, छोड़ो। सो या जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो ना, जी है जी ना, लिटरली लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम में आप फंसे हो, है ना, एंड जी। आपको चाहिए कि मैं ये प्रॉब्लम से कैसे निकलूं, है ना, हाँ हाँ। वो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, एक सीनियर डिवोटी से, है ना, जिससे भी आप कनेक्टेड हो, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, उससे सिर्फ वो हम्म, प्रॉब्लम शेयर करना है इन द मूड ऑफ बेगिंग मर्सी, कि आप प्लीज मेरे लिए प्रे करो, है ना, आप प्लीज हम्म, मेरे ऊपर मर्सी दो, है ना, तो मुझे इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए शक्ति चाहिए। सो इफ यू आर आस्किंग a senior devotee for their जी। blessings, literally हम्म, माया देवी अपना प्रभाव कम कर लेती है आपके ऊपर से, एंड वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बहुत जल्दी निकल जाता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ हाँ इंस्टेंट, बट लिटरली आपकी दिमाग की बत्ती जल जाती है। मेंटोस खाते होंगे अभी अभी तो सब आप लोग भक्त बन चुके हो, आप मेंटोस नहीं खाते होंगे, बट मैं खाता हूँ, मैं पापी हूँ ना। तो मेंटोस जैसे जी दिमाग की प्रभु जी। बत्ती जलाता है ना, तो वैसे ही क्राइंग एंड बेगिंग फ्रॉम अ सीनियर वैष्णवा फॉर देयर मर्सी आपकी दिमाग की बत्ती जल जाती है, एंड आपको कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया आ जाता है जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। सो या, एंड देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर ये होता है, माया देवी आपको लास्ट मोमेंट तक चेक करेगी।
है ना, टेस्ट करेगी। आपको उस वैष्णवा के ऊपर से कन्विक्शन तब तक नहीं खोना है जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, एंड जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कन्विक्शन बढ़ जाएगा। सो लिटरली माइनस में कभी नहीं जाना है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट माइनस on the mercy of that Vaishnava of Prabhupada ji और कृष्णा जी, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे गड़बड़ मत करना। सो दैट इज़ अ डेलिकेट थिंग कि आप ब्लेसिंग्स तो सीख करो, बट जो मूड होना चाहिए ना वो दास से भाव होना चाहिए। हमें भक्ति में सिखाया जाता है हम भगवान जी के दास के दास के दास है, अहम दासानु दासानु दास हो, एंड दास नेवर क्वेश्चंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ देयर मास्टर। Did you get that? तो ये सीक्रेट है, एंड ये लिटरली जब से मेरे को समझ में आया है ना, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। बड़े सी बड़ी प्रॉब्लम मैं किसी सीनियर डिवोटी के साथ कंसल्ट करता हूँ, बस देखिए सिर्फ बोल दो, है ना। ऐसा नहीं कि जी सामने वाला वैष्णव आपको कोई ना कोई सोल्यूशन देगा, वो नहीं भी दे रहा है तो सिर्फ उसको बोलो कि सिर्फ मेरे लिए प्रे करो कि मुझे शक्ति दे भगवान माया देवी से लड़ने के लिए। सो दैट इज़ द सीक्रेट। ओके, सो मैं बहुत बोल दिया, 8:30 बज गए। आप लिटरली आधा घंटा ज़्यादा झेल रहे हो मुझे, क्यों ऐसा? लिटरली प्रभु जी, हमने बोला था ना आपके लेक्चर सब अमृत के समान है, हमें कुछ नहीं लग रहा कि बोझ है या कुछ, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। ओके, बट मैं आप प्रभु सभी जी और 2-4 घंटा चलेगा तो चलेगा। नहीं, मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो ग्रुप में क्विज़ है, आप उस क्विज़ को अटेंड करो एंड स्क्रीनशॉट्स आप ग्रुप में डालिए, है ना, ताकि बाकी सब लोग भी मोटिवेट हो, है ना। एंड दूसरा, आपको ना अपने आचरण से, अपने बिहेवियर से दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है इन अ गुड वे, सो दैट वो भी थोड़ा बहुत कन्विंस हो विद द भक्ति, विद कृष्णा, है ना। आपको बिना वजह का डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं करना है, मतलब डायरेक्टली आप किसी के पास जाओगे और बोलोगे हरे कृष्णा बोलो, वो डर जाएगा, वो भाग जाएगा, आपको अनफ्रेंड कर देगा। जी सो आपको दूसरों को चेंज नहीं करना है, आपको अपने आप को चेंज करना है, आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना है, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना है ना। तो जी लिटरली ऐसा करोगे, सो आप भक्ति में आगे जाओगे। सो किसी को चेंज मत करो, अपने आप को चेंज करो। तो या दैट वाज माय लास्ट पॉइंट, एंड हम अभी एंड करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च दीनबन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thank you, dear devotees, for being in this class and listening to me and giving your time and allowing me to provide this service of Gitamrita class unto your lotus feet. So literally, thank you so much. आप सब लोग एंड कर सकते हो, लीव कर सकते हो, एंड पीपीटी मिलेगा आपको, सो दैट यू कैन रिवाइज जो भी आज कुछ हुआ, है ना। तो या पीपीटी आपको मिल जाएगा। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।